एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला पिछली बार, जिसके भी जीवन में अगर कर्जा है आपके जीवन में, तो मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। मैंने बताया 2 चीजें हो सकती है। एक, परमेश्वर अद्भुत रीति से तुम्हारे हर कर्जे को माफ कर देगा, मिटा देगा वो, या फिर तुम्हें वो बुद्धि ज्ञान देगा, वो मौका देगा ताकि तुम अपने उस बुद्धि ज्ञान से अपने कर्जे को मिटा सको। He doesn't want us to live in debts. वो नहीं चाहता कि हम हमेशा कर्जे में रहे। If you believe, just place your right hand upon your head. अपना राइट हैंड अपने सर पे रखना और बोलना, परमेश्वर मुझे ये बोझ नहीं चाहिए। तेरा वचन कहता है मुझे धनी बनाने के लिए तू गरीब हो गया। उस क्रूस पर तूने मेरे सारे कर्जे माफ किए। Yes, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every spirit of death, I cancel it in Jesus' name. Whether it will happen supernaturally or by the wisdom and the opportunities that will come. Lord, every debt will be cancelled from your children's life. Set your children free in Jesus' name. It will never be a burden to them, oh God. It will never be a bondage to them. Supernaturally, oh Lord, that which is impossible to man is possible with God. That which is impossible to man is possible to God. When the prophet said, by tomorrow morning, you will have much food, there was an authority who did not believe. He said, even if God opens up the windows and doors of heaven, it will not happen. The prophet said, you will see it, but you will not experience it. If you believe, you will see the glory of the Lord. If you believe, you will see the glory of the Lord. For my God is not a dead God. He is still alive. And He still does miracles and wonders. For you are great. You do miracles so great. Keep your hand like that. Don't remove. The presence of God
The anointing of the Holy Spirit is moving in our midst. Oh Maharaj Sikaralavantoro. Remana Santa Kiribalo Shabakara Sandare. Remahalarabo Santa Kiribo Shatara. Nazifro Mahantake. Amazalande. El Bohomaha Nazike Mahotoro Zantakana Zeborosa El Hatakorian Takana Zibe Emanu Zufor Rohobasa Reman Tekeria. In the mighty name of Jesus, what has been coming from generations, I break its power in Jesus' name. What has been connecting from generations, I break its power in the mighty name of Jesus. You are not supposed to carry it. Under this mighty anointing, I say it will stop in Jesus' name. Every curse, every disease, I break its power in Jesus' name. Nazibrohomahasakalarabant. Kamara Sataralarabo. Oh Mahazamanandere. I thank you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. There is none like you. There is none like you. Do it, do it, do it, oh Lord, for your name's sake, for your glory's sake, for your name's sake, oh God. Heal, oh Father God, your children. Let your healing flow. Let your healing flow. Let your healing flow. Send forth your word and heal your children. For you are our Jehovah Rapha, who heals all our sickness and diseases. Devil, you have no authority over the bodies. You have no authority over these bodies. Let them be made whole from the top of their head to the tip of their toe. For we declare, by your stripes we are healed, O Master. By your stripes we are healed. Yes. I thank you. I thank you. I thank you. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद देता हूं परमेश्वर फिर एक बार तेरी सुंदर से उपस्थिति के लिए, और जो कुछ भी तूने किया सारी महिमा तुझे परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमेन. We'll go into the word directly. Yes, Matthew 6 and verse 12. Yes. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Hallelujah. तो जैसे मैं बता रहा था, हम लोग इस फ्रेज में है, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, शरीर के लिए जैसे रोटी मांगते हो तो वैसे ही प्राण के लिए माफी मिलना जरूरी है. राइट. सो जब परमेश्वर हमें माफी देता है तो पहली बात, हमें माफी चाहिए, ये हमें स्वीकार करना है. जब तक हम मानेंगे नहीं कि हमें माफी चाहिए, तब तक वो देगा नहीं. राइट. तो इसके लिए मुझे जानना है कि मैं कर्जे में हूं. Unless I accept that I
am in debts, he will not forgive. राइट तो मानना मेरे लिए जरूरी बन जाता है. राइट रिपीट नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें मैंने बताया. ओके सो हम सभी परमेश्वर के उस कर्जे में है. हर दिन का कर्जा है, हर सांस के कर्जा है ना. हर एक आशीष का कर्जा हम पर है जिसके हम लायक नहीं है. राइट तो वो मेरे लिए कर्जा बन जाता है. तो इसलिए पॉल कहता है वो unto me if I preach not the gospel. Amen. अगर अपनी भाषा में कहूं, वो मेरे सर पर एक कर्जे जैसा है अगर मैं उसको न बांटूं. राइट I am accountable for that. Right? So I'll start with a quote. Guilt is the need for receiving forgiveness. Bitterness is the need for giving or extending forgiveness. पाप मनोभाव जो है माफी मांगने के लिए जरूरी है, और कड़वाहट जो है वो माफी देने की जरूरत है. Amen. Right? So continuing on with that. And forgive us our debts. कई बार मैं सोचता हूं यीशु मसीह अगर ये वचन इतना ही होता तो बहुत अच्छा होता. Forgive us our debts. चलो कर्जा माफ, खत्म, उधर फुल स्टॉप, है ना. लेकिन यीशु मसीह वहां पे रुकता नहीं है. राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एज. हिंदी में कैसा है? जैसे, है ना. हिंदी में अगर कहूं तो जैसे. जैसे एक वर्ड भी देखा था हमने पहले यही प्रार्थना में. कैसे? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. राइट वेडनेसडे जो नहीं थे मैं बताना था. आई वाज टेलिंग हमारा जीवन जो है ना हमेशा कंपैरिजन पे चलता है ना. हर चीज में हम किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते हैं. कोई भी चीज अगर हमको करना है तो हमेशा कंपेयर करते हैं, है ना. इसलिए कंपैरेटिव बाइबल भी निकाले, है ना. 2-3 वर्षन एक बार आ जाते हैं, पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ो. राइट सो यीशु मसीह जब सिखा रहा था बोला मैं भी कंपेयर करूंगा तुम्हें. सो उसने एक वर्ड यूज किया, है ना. जैसे अगर हिंदी में हम लोग बात करें, राइट जैसे, a very simple word but it changes the whole meaning of the requirement of God. परमेश्वर के क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट. उसको जो चाहिए, उसकी जो जरूरत है, वो बोलता है एक वर्ड पे डिपेंड होता है. अच्छी बात है जब वो यीशु मसीह सिखा रहा है हमें, फादर फॉरगिव अस आवर डेट्स, है ना. पिता हमारे पाप या फिर कर्जा माफ कर. वहीं पर रुकता नहीं, वो बोलता है जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं. परमेश्वर हमें तू उसी तरह माफ कर जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं. हालेलुया. तो परमेश्वर बोलता है यहां पे अथॉरिटी तुमको दे रहा हूं मैं, एक अधिकार तुमको दे रहा हूं मैं कि तुम जो मांग रहे हो मैं उसी तरह तुमसे करूंगा. चार्ल्स स्पर्जन है इस वाक्य को बहुत अच्छा समझाते हैं. आई वाज रीडिंग, वो कहते हैं डेयर नॉट यू प्रे द लॉर्ड्स प्रेयर. प्रभु की प्रार्थना करने के लिए जल्दी मत करो. Because when you are praying, you are signing your own death sentence.
आज के बाद प्रभु की प्रार्थना करने के लिए 10 बार सोचोगे। हम बच्चों को बुलाते पहला क्या सीखो, लॉर्ड्स प्रेयर सीखो। लेकिन जो प्रार्थना, कभी कभी लगता है, मुझे बताओ, कभी आपने बोला परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों घटनाएं घटती है, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर बोलता है तू रोज प्रार्थना करता है, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं तुझे। ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है मेरी ओर से, क्योंकि तू रोज प्रार्थना कर रहा है। अगर मैं मेरे वर्षन में कहूं, जैसे मैं दूसरों के साथ बर्ताव करता हूं परमेश्वर, उसी तरह तू भी मेरे साथ बर्ताव कर। फिर पूछते ऐसा क्यों कर रहा है, बोला तूने प्रार्थना की। हर प्रार्थना के बाद एंडिंग में लॉर्ड्स प्रेयर। Why do you pray? Saying, Lord, forgive us our debts as, जैसे मैंने किया ऐसे ही तू कर मुझे। Hallelujah. A very serious thing. पता है उसको अगर पैराफ्रेज करूं, बाइबल नहीं बदल रहा हूं लेकिन पैराफ्रेज करूं, अगर उस वचन को मैं ऐसे बोलूं, unless I forgive my debtors, Lord, do not forgive me. जब तक मैं माफी न दूं, तू मुझे माफ मत कर। इस वचन का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग यही है। हालेलुया। हम बैठे हैं, हमको माफी मिली, नहीं, गलतफहमी है। हम हर दिन समझते हैं हम माफ किए गए, घोषणा करते यीशु मसीह के लहू से धुले गए। यहां पे हम लोग ना थोड़ा डिफरेंशिएट करना भूल गए। ये प्रभु की प्रार्थना किसको सिखा रहा है यीशु मसीह? किसको सिखा रहा है? अपने चेलों को सिखा रहा है। He is teaching the disciples, not the people of the world. दुनिया के लोगों को नहीं बोल रहा है, ये अपने चेलों को बोल रहा है। जो चेले यीशु मसीह के साथ में है, उसका वचन सुन रहे। या फिर मैं अगर एक बाइफर्केशन करूं, इट्स नॉट राइट बट स्टिल आई विल डू दैट। अगर बाइफर्केशन करूं कि बिलीवर्स और अनबिलीवर्स, इफ आई काउंट disciples as believers, he is teaching the believers, saying, pray that you will be forgiven. विश्वासी होने के बाद भी मुझे हर दिन प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे माफ कर। लेकिन क्या मैं अश्योर्ड बोल सकता हूं या फिर खातरी बोल सकता हूं कि मेरे पाप माफ किए गए? पता है, आप बाइबल में से बहुत सारे वचन निकालेंगे, बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे हमको कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, राइट? लेकिन जब यीशु मसीह यहां पे बोल रहा है, तो बोलता है माफ किए जाएंगे आप, लेकिन एक कंडीशन है। हालेलुया। तुम्हारी माफी की खातरी तब है जब तुमने माफ किया। हालेलुया। पता है, बैठ के आई थिंक कल सवेरे इसको थोड़ा सोच रहा था मैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया परमेश्वर ने, देखना चाहते हो? एक मिनट।
कितना है? आई कैन से आई हैव मनी। अगर मैं कहूं कि इसको बदल के, ये फ्रंट पोर्शन है, एक व्यू है, राइट, और इसके पीछे अगर मेरा नोट ऐसा रहे, मेरे घर में ऐसे भर के पड़े, ऐसे भर के पड़े हैं, लेकिन अगर उसको पलट के देखे तो यीशु मसीह कह रहा है, तुमको लग रहा है तुम माफ किए गए, आई एम रिच बिकॉज आई एम फॉरगिवन, बट यू आर रिच until I see the backside of it. This will be as this. समझ में आ रहा है क्या लेके घूम रहे हैं हम लोग? एक साइड वाला प्रिंटेड, जाके रिजर्व बैंक में भी दिखाओ, वो बोलता है एक ही साइड है प्रिंट। कैन आई टेल यू समथिंग स्ट्रेट? जब जाएंगे स्वर्ग में, एक साइड तो है, कैसे धुला, कैसे प्रिंट हुआ, यीशु मसीह ने अपना जान दिया क्रूज पे, उसके लहू के द्वारा, है ना, छापा पड़ गया। एवरी सिन इज फॉरगिवन, एवरी कर्स इज टेकन ऑफ, एवरी डिसीज इज हील्ड। सब कुछ है इधर ये साइड में, लेकिन वहां जाने के बाद एंट्री करने के लिए थोड़ा ऐसा पलटेंगे उसको। बोला पीछे क्या है? पीछे है प्रिंट है या फिर तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि हमें तो माफ कर जैसे हमने दूसरों को माफ किया। हालेलुया। लॉर्ड्स प्रेयर में बहुत सारी चीजें बताई यीशु मसीह ने, लेकिन ये एक ही पॉइंट है जिसका एक्सटेंशन है ना। कभी कभी होता है, स्पेशली हम लोग टीचर्स जब स्कूल में पढ़ाते, लेसन पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा नोट्स देते, है ना, उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हम लोग। तो यीशु मसीह ने भी पूरी प्रार्थना सिखाने के बाद फिर उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। सेम चैप्टर 6th चैप्टर, रीड फॉर मी 14 and 15। मैथ्यू 6:14 and 15। ओके। परंतु, सब लोग बोलो, किंतु, परंतु, हाँ, हालेलुया। दो-धारी तलवार। कोई एक दूसरे को जज करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पाप माफ हो गए? आपके सामने आईना रखता हूं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। Can I look into myself and say my sins are forgiven? I can quote many quotes, बहुत सारे रेफरेंस बोल सकता हूं, लेकिन उस सबसे पहले ये कंडीशन आता है मेरे सामने। बोलता है माफ करने के लिए मैं कंजूस नहीं हूं, मैंने अपने बेटे को दिया तुमको माफ करने के लिए। If you read that in English for me, TPT.
Get me that EPT version. Okay, 14 and 15. Matthew 6, 14 and 15. तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है या फिर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मेरे कर्जे माफ कर, कर्जे में तो है ये गारंटी है ना, इसके बाहर नहीं आ सकते। हम ऐसे कर्जे में जिसको हम कभी चुका नहीं सकते, राइट? क्योंकि हमारी आखिरी सांस भी उसका कर्जा है। My last breath will be a debt for him that he has kept me alive till that last breath. ये कर्जा जो मैं कभी नहीं चुका सकता, मैंने कर्जा किया जो मैं चुका नहीं सकता, उसने कर्जा वो भर दिया जो कर्जा उसने किया ही नहीं था। आमेन, हालेलुया। उसने उसके लिए जान दी जिसके लिए उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, जिसका कर्जा वो लिया ही नहीं, उसने अपना कर्जा अदा किया। आमेन। So I am under a debt which I can never repay. Hallelujah. उसको मैं कभी नहीं खत्म कर सकता, लेकिन उसने अपनी जान देकर मेरी जगह पे मेरा कर्जा खत्म किया। Right? Accepted. Okay. Now this prayer is not about the sinner's prayer. जब हम बोलते हैं माफी मांगने की बात आती है, ये उद्धार की प्रार्थना नहीं है। उद्धार की प्रार्थना नहीं है। उद्धार में क्या हो गया? आप पापी थे, आपके पाप माफ हो गए, आप निकल के आ गए बाहर। Now this is a prayer after I enter into the family of God. Hallelujah. तो एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। To become a son, there is no condition. Right? To become a son, there is no condition. Just believe in Jesus, you will be called as the son of God. Right? लेकिन जब बेटे बन जाते हो तो तुम्हारे जीवन में रूल्स लागू होते हैं, कंडीशंस लागू होते हैं। आमेन। तो वहां पे क्या होता है, जब मैं बेटा बन के जीने लगता हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कैसे जी रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता का नाम खराब नहीं होना है। There is a responsibility upon me. एक जवाबदारी बन जाती है, मैं किसका बेटा हूं। क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूं तो किसके नाम पे जाएगा? पिता के नाम पे जाएगा। पहला प्रश्न है, किसका बेटा है हो? कुछ भी करो, पहला आता किसका बेटा है हो? तो परमेश्वर भी बोलता है, बेटा बनने के लिए तुझे कंडीशन नहीं डाल रहा हूं, लेकिन बेटा बनने के बाद तू कैसे जिएगा वो मैं डिसाइड करूंगा। हालेलुया। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन मैं जैसे बोलता हूं वैसे करना है तुझे। तुझे माफी चाहिए, बेटा बन के जो गलती किया तूने उसकी माफी चाहिए, तो तू पहले माफ करना सीखना है तुझे। हालेलुया। If you're praying, Lord, forgive me as I have forgiven, तो परमेश्वर बोलेगा, तेरा प्रेयर कैसे कर सकता हूं, अब तो तू मेरा बेटा है, तो तेरे साथ भी वही सलूक करूंगा जो तूने दूसरों के साथ किया। With what measure you meet others, remember God is also going to meet you with the same measure. Hallelujah. मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर? नहीं, because you behaved it like that. You're just getting the returns of what you have sown because you prayed that. Hallelujah. क्योंकि तुमने प्रार्थना की, मैं जैसे दूसरों के साथ बर्ताव करता हूं वैसे ही तू मेरे साथ कर। मैं दूसरों के साथ चिड़चिड़ा रहूंगा, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ चिड़चिड़ा रहे। मैं किसी के साथ बात करने का बंद करता हूं तो परमेश्वर बोलता मैं भी बंद करता हूं तेरे से। फिर कभी नहीं बोलना परमेश्वर क्यों नहीं बात कर रहा है, बोला पहले उससे जाके बात कर। हालेलुया।
ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? थोड़ा देख ले। या तो लॉर्ड्स प्रेयर करना बंद करो। कुछ नहीं, रट्टा मारे, बोल दिए, बस खत्म। एक मिशनरी था जो फील्ड में सेवा कर रहा था। कुछ लोगों ने आके उसके बेटे को मार दिया, खत्म कर दिया उसको। वो गया फ्यूनरल पे, प्रार्थना करा, फिर खत्म करते हैं ना लॉर्ड्स प्रेयर। प्रार्थना होने के बाद वो बोलने लगा, then he came to this line where he said, and forgive us our debts, our trespasses, as we forgive our trespassers. रुक गया वहां पे। There's something that happened. कहते हैं रुक गया वहां पे, सीधे पुलिस स्टेशन चला गया, जहां पे जो जिसने इस लड़के को मारा था ना, वो उस अंदर था। वो गया, बात किया पुलिस से, बोला आई वांट वन परमिशन। बोला क्या? इसको एक 15 मिनट के लिए लेके जाता हूं मैं, आप भी चलिए। कहाँ लेके जा रहे? मेरे बेटे को मुझे दफन करना है। So he took him to the cemetery, made him stand there before burying his son. He said, Father, I forgive this person. Because once I bury, I may not ask forgiveness. हमारे लिए शायद बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन परमेश्वर बोलता है यू आर नॉट फॉरगिवन until you forgive. Don't be under an impression that I am forgiven. इस सोच में, इस assumption में, क्या बोलते हैं assumption को, है ना? ऐसे समझ में नहीं रहना, नहीं मेरे पूरे माफ नहीं। When you stand before God, your image will be turned. Your image will be turned. What will he see on the other side? उसकी दूसरी ओर क्या देखेगा परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं? है? बनना चाहते हैं तो पहला वो करो जो उसने किया। The first thing he did on the cross, he said, forgive. You want to be like Jesus? Then start with the forgiveness. मुझे कभी कभी लगता है जो लोग माफ नहीं कर सकते ना, उनका सैल्वेशन भी पक्का नहीं है। I can tell it boldly. I can tell it boldly. नहीं, आपको लगता है हम उद्धार पाए? नहीं, तू माफी कैसे ले सकता है जब तू दे नहीं सकता? और तू कहता है मेरा उद्धार हो गया। How can a heart repent and receive forgiveness until it gives forgiveness? Okay. Turn with me to Matthew 18th chapter. मत्ती उसका 18वां अध्याय। Read from verse 21. Matthew 18 and 21. यदि मेरा कोई भाई अथवा बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता नहीं, फिर से पढ़ो उसको। तब पतरस ने आंख आंख यीशु से कहा,
पतरस यीशु के पास आके ये कहा, हाँ, यदि मेरा कोई भाई अथवा बहन यदि मेरा कोई भाई या फिर बहन, दुश्मन की बात नहीं कर रहा, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा है. He is talking about somebody who is connected with me, who is related to me in some way, right? अरे जब पानी पूरी खाने जाते हो उसको भी भाई बना लेते हो. ओ भैया पानी पूरी दो. किसी को एड्रेस करना है, मेरा भाई कौन, कितने बार कितने लोगों को बोला. कभी कभी कैलकुलेट करना चालू करते, किसको माफ कर. एनीबडी विथ हुम यू आर कनेक्टेड. तो पतरस आके उसके भी मन में प्रश्न है, यदि मेरा कोई भाई कोई बहन बोलता. ओके, हाँ कंटिन्यू. यदि हाँ, मेरा भाई अथवा बहन मेरे विरुद्ध पाप अपराध करता जाए तो मैं तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? उससे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? क्या 7 बार? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, परफेक्शन की ओर जा रहा है पीटर. बोला 7 बार. 7 बार क्यों बोलता है पता है? क्योंकि उस जमाने में सिर्फ 3 बार माफ करना अलाउड था. राइट? ओके, विल नॉट रीड इट. घर जाके होना है तो पढ़ लो. आमोस 1 and 3. राइट? 3 बार माफ करना अलाउड था उस टाइम पे. तो यहाँ पे पतरस पूछ रहा है, नहीं 3 बार नहीं, मैं 7 बार पूछ रहा हूं. परफेक्शन की ओर पूछ रहा हूं मैं. क्या मैं 7 बार माफ करूं? राइट? तब यीशु मसीह रिप्लाई करता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे नहीं कहता 7 बार, मैंने कहता कि तुम 7 बार माफ करो, बल्कि 70 गुना 7 बार. 70 गुना 7 बार. इंग्लिश में कैसा है? 70 times 7. हमने कैलकुलेट किया था, कितना हो गया? 490, है ना? राइट? केजेवी में 490 है. यही अगर एनआईवी में पढ़ेंगे ना तो खुश हो जाते हैं एनआईवी जो पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ 79 टाइम्स है वहां पे. राइट? ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है उसका. ओके, लेकिन जब कहता है 70 times 7, इसलिए ज्यादा भी कंपेयर करके मत पढ़ो, ओरिजिनल पढ़ो. कौन सा अच्छा है वो लेंगे, यहाँ पे कम है ये लेंगे. Jesus was saying, no, it is 70 times 7. तुम 3 बार नहीं, 7 बार नहीं. Hallelujah. It is times. एडिशन. कुछ लोग बहुत सारे 70 बार 7 ऐड करो. एडिशन नहीं है वो. Right? When it comes to times, it is multiplication. Okay? जिनको माफ नहीं करना होता ना वो कैलकुलेट करते बैठते. सीधा सीधा बोलो ना, नहीं करना है माफ, है ना? क्यों गिनते बैठते हो दिन भर? इतनी बार किया, इतनी बार मुझे ये बोला, ऐसे बोला, ऐसे. माफ जो करता है छोड़ देता है. हालेलुया. आमीन. राइट? तब यीशु मसीह ने आगे कहा, उसको समझाने के लिए तब एक पैराबल बोलता है. दिस इज अ ब्यूटीफुल पैराबल. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. थोड़ी देर जाएंगे इसमें. ओके, सारी चीजें शायद नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जिसको आज समझना है मुझे. किसी और चीज के लिए नहीं तो नहीं, अपने उद्धार का खातिर करने के लिए. आमीन. अंदर क्यों नहीं छोड़ रहे? नहीं बाबा, तो एक साइड का नोट है. तेरा एक ही चेहरा है, दूसरा चेहरा स्वर्ग में अलाउड नहीं है. तेरा दूसरा चेहरा स्वर्ग में अलाउड नहीं है. ओके, कंटिन्यू. यही कारण है कि हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के
स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है। जो अपने सेवकों से हाँ, लेखा लेना चाहता है। ओके, ये राजा है जो अपने सेवकों से लेखा लेना, हिसाब लेना है अभी, है ना। राजा का काम क्या है? हिसाब लेना। हमारा राजा भी एक दिन हमसे हिसाब लेगा। इस अंदाजे में मत बैठो चलता है, नहीं, हर चीज का हमें हिसाब देना पड़ेगा। हर एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, हर एक बातों का हिसाब देना पड़ेगा, हर एक सोच का हिसाब देना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। नथिंग इज गोइंग टू बी मिस्ड। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। हालेलुया। कोई चीज छूटेगी नहीं, सबका हिसाब देना पड़ेगा। ओके, राइट। उससे पहले दो चीज बोलता हूं मैं। जब मैं कह रहा था कि हम कर्जे में है, आई विल जनरलाइज एंड टेल इट, जो अपने हैं उनके ऊपर मेरा क्या कर्जा है? ओके, इसको जाने से पहले विल गो इनटू दैट। ओके लॉर्ड, रोमन्स 13th चैप्टर, मैथ्यू 18 को रखो खुला, फिर उसमें आएंगे वापस। मैथ्यू 13th चैप्टर, सॉरी, रोमन्स 13th चैप्टर वर्स 7 and 8। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हम्म 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 हम्म। Hallelujah. Thank you. Thank you. Okay. Why am I shifting? Go back to Matthew. Matthew 18. तो यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जो अपने सेवकों से हिसाब लेता है। राइट, सेवकों से हिसाब लेता है। तो मुझे याद रखना है कि मुझे हिसाब देना ही है। ओके, फिर क्या होता है? जब वो लेखा लेने लगा, हाँ, जब वो हिसाब लेने लगा, अब उसके सामने एक सेवक लाया गया। एक सेवक लाया गया उसके सामने, उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था। 10,000 सोने के सिक्के। हाँ, कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर दिया जाए। Having debt in those days, उस दिनों में अगर कर्जा होता तो सिर्फ कर्जा लेने के लिए नहीं आते वो। अगर तू चुका नहीं सकता तो राजा ने क्या किया? क्या बोला? उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका सारा जायदाद बेच के मेरा कर्जा चुकाना है। Are you understanding the seriousness of debts? अगर एक राजा इतना सीरियस हो सकता है कि अगर तू मेरा कर्जा चुका नहीं सकता तो तेरा कुछ जो कुछ भी है मैं सबको बेच दूंगा।
क्यों मेरे हाथ से मेरी चीजें फिसलती जा रही है? क्यों मेरे से मेरी चीजें छीनी जा रही है? क्यों ऐसे हो रहा है कि कोई चीज मेरे हाथ के पकड़ में नहीं आ रही है? उसको कितना घट पकड़ना चाहता हूं, चला जाता है। क्योंकि राजा ने आज्ञा दिया है, क्योंकि इसने कर्जा नहीं दिया, कर्जा चुकाया नहीं। इसका जो कुछ भी है इससे निकालते जाओ। कर्जा तूने किया, लेकिन बेचा कौन जा रहा है? हालेलुया। राजा बोलता है, तू कर्जा चुकाने तक मैं क्या करूंगा? तेरे बीवी बच्चे, तेरी जायदाद, सब कुछ बेच के मेरा कर्जा चुका। वचन क्या लिखा है? 10,000 सोने के सिक्के कर्जा था इसका, और कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। जस्ट इमेजिन हिज कंडीशन। मैं चाहता हूं आप उसका फिजिकल कंडीशन ध्यान। एक कर्जा है, चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, 10,000 सोने के सिक्के, और राजा अभी लेखा लेने के लिए आ रहा है। द किंग इज आस्किंग अकाउंट। हालेलुया, आमेन। तो तब उसका उत्तर क्या होता है? हाँ, इस पर उस सेवक ने उसके पैरों पर गिर पड़ा, सेवक ने उसके पैरों पर गिर पड़ा, और ये कहते हुए विनय करने लगा, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। जिसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, जो चीज तुम नहीं कर सकते हो उसका प्रॉमिस मत करो। राजा को पता है इसकी कंडीशन क्या है। बोला तेरे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है और तू ऊपर से टाइम मांग रहा है। राजा को बोल रहा, बी पेशेंट, थोड़ा टाइम दो। राजा बोलता, तेरी कंडीशन पता है। हमको भी देख के बोलता है परमेश्वर, तेरी कंडीशन पता है, यू कैन नेवर पे माई डेट्स। तो किस बात की टाइम मांग रहा है तू? किस बात की दया मांग रहा है? हम कभी कभी ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि हम कुछ किया हमने तो परमेश्वर का कर्जा अदा किए। राक्षस, आई नो योर कंडीशन। तेरे पास कुछ है ही नहीं मेरा कर्जा अदा करने के लिए। मैंने मेरे अच्छे अच्छे काम है ना, चिंदी कपड़ा, तेरे सबसे अच्छा काम मेरे लिए चिंदी कपड़ा, तू कर्जा अदा करेगा मेरा? प्रिंसिपल तो छोड़, इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता तू। कोशिश भी मत करो, क्योंकि नहीं है हमारे। व्हाट कैन आई से? नहीं कर सकते हम। तो एक ही चीज करना है हमको, जैसे इस सेवक ने किया, गिरो उसके पैर पर, गिड़गिड़ाओ। इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में पढ़। 26th verse. The servant therefore fell down and TPT. हाँ, the servant fell down. King James में कहता है upon his face down. अपने मुख से गिर गया ऐसा नीचे। हाँ हाँ, face down at his master's feet and begged for mercy. हालेलुया। हम सिर्फ इसके लायक है। हालेलुया, नथिंग एल्स। उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते,
उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते हम। And he begged for mercy. आगे Please be patient with me. Give me more time. And I will repay you all that I owe. Thank God किसी को ऐसा टाइम ना आए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, जब डेडलाइन मिलता है हमें, तो हमारी सोच कैसे बन जाती है। हमारे मुंह में एक ही शब्द रहेगा जो इसके मुंह में आया, गिव मी सम मोर टाइम, गिव मी वन मोर डे, गिव मी सम मोर टाइम। जब ये उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, उसके पैरों पर गिरा, ये हमारे राजा का कैरेक्टर दिखाता हूं। What did he say? सेवक ने स्वामी को तरस आया। राजा को उस सेवक को देख के उस पर तरस आया, और क्या किया? उसका कर्जा माफ किया। हालेलुया। सोचो, एक मोमेंट है जब आप कर्जे से अंदर आए, with full burden you came inside. ऐसी परिस्थिति है, भर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, राइट? बीवी बच्चों को बेच दिया जाएगा, मेरा सब कुछ लूट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अंदर आए, उसके पैरों पे गिरे, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की, उसको धन्यवाद दिया, उसको उसके नाम का क्या बोलते ऊंचा उठाया, जहां से एक शब्द निकलता है, तू बाहर जाने से पहले तेरा हर एक कर्जा माफ। हालेलुया। तेरा हर एक कर्जा माफ। सोचो, आज बाहर जाने से पहले आपके व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज आया, ये देखो खाली पेड़ा देता है। Be it according to your faith. हालेलुया। राजा ने कहा, जा माफ किया तुझे, जा माफ किया तुझे। मैं कैलकुलेट कर रहा था, I was just researching 10,000 गोल्ड कॉइन्स, अगर आज के हिसाब से देखो, $3,085 crores. And do you think a king can forgive this like this? मैं बोला, राजा तू पागल है। शायद अगले युद्ध में तुझे जो बंदूकें खरीदनी थी, जो युद्ध के शस्त्र खरीदने थे, तू इतना माफ करेगा क्या? और ये आदमी कह रहा है थोड़ा टाइम दे, पूरा चुकाऊंगा। कहां से चुकाएगा? किसको बेवकूफ बना रहा है? नहीं होता है तेरे से, नहीं होता है। मेरी माफी के अलावा तेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक बार अगर हम इस बात को समझें, परमेश्वर तेरे माफी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है।
मैं कहता हूं वो तरस खा के बोलेगा जा माफ किया। नहीं, अगर तू ये बोल रहा है थोड़ा टाइम दे और कुछ करूंगा, नहीं करता है। अरे जो तू इतने दिन नहीं किया अभी क्या करेगा? जो इतने दिन मैंने जो किया उसका तू थैंक्स भी नहीं बोल सकता, मेरा कर्जा क्या चुकाएगा? बैठ के सोचते हैं परमेश्वर ने ये किया वो किया, कर्जा है मेरे लिए, वो किया क्या मैंने उसके लिए? लेकिन फिर भी वो कहता है चल माफ किया जा। सोचो कैसा गया होगा वापिस हो, राजा की उपस्थिति से कैसे वापस गया होगा। हालेलुया, आमेन। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, राइट? मैं बोला जीसस अगर यहीं पे कहानी खत्म करता तो अच्छा था, राइट? लॉर्ड्स प्रेयर का फर्स्ट सेंटेंस फॉरगिव अस आवर डेट्स, खत्म, उतना ही बस है, आगे मत बोल, आज कभी मत बोल नीचे जैसे मैंने मत बोल। तो ये चला गया बाहर, राइट? इतना सारा माफी लेके ये बाहर चला गया, इतने सारे आशीष लेके ये बाहर चला गया, इतना सारा परमेश्वर का प्यार लेके बाहर चला गया, इतना सारा परमेश्वर का दया का अनुभव लेके ये बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाने के बाद क्या किया उसने? अंदर आके मुझे क्या मिलता है, इससे ज्यादा अंदर से जो बाहर लेकर जा रहे हो उससे क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है परमेश्वर के लिए। क्योंकि वो बोलता है मेरे दरबार में तो तुम्हें माफी मिलेगी जरूर, जो माफी मांगेगा उसे माफी मिलेगी जरूर, लेकिन माफी लेके तू जब बाहर जा रहा है तो तू क्या करेगा मैं वो देखूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो तुमने पॉकेट से निकाल के जो डाला ऑफरिंग में वो नहीं देखता, बचाया कितना तूने अपने पॉकेट में वो देखूंगा। जिस चेहरे से तू यहाँ पे बैठा है उसको नहीं, वापस जाके जो चेहरा तेरे घर में बनेगा ना, मैं वो देखना चाहता हूं। यहाँ तो सब अच्छे चेहरे दिखना चाहिए। क्या घर जाने के बाद मैं वो चेहरा देख सकता हूं जो यहाँ देखा मैंने? पढ़ो आगे। जब वो सेवक बाहर निकला तब वो अपने एक सहसेवक से मिला। ध्यान से, नहीं एक मिनट कर, फिर से उसको। जब वो सेवक बाहर निकला तब वो अपने एक सहसेवक किससे मिला? सेवक। ये राजा के सामने आ रहा है, अभी ये कौन है इसके बाजू में? सेम लेवल का है, तेरे बाजू बैठे सब वाला तेरा लेवल का ही है ना, तू उससे ऊंचा है ना वो तेरे से ऊंचा है। ऊंचा रहेगा सिर्फ वो राजा जो माफ करेगा। तू राजा बनने की कोशिश मत कर। सहज सेवक है तेरा वो, जो जिस बातों से तू गुजरा ना उसी बातों से वो गुजर रहा है। तेरे से जैसे हिसाब लिया गया ना, अब उसके साथ भी तू वही हिसाब ले रहा है। सहसेवक से मिला जिस पर लगभग 140 इसका कितना था? 10,000 सोने का, राइट? और इसका नहीं, आज का रेट नहीं पूछ रहा हूं। तेरा 10,000 का सोने का सिक्के का कर्ज था और तूने जो दिया था
तो 100 चांदी के सिक्के दिया था सिर्फ। इसका कैलकुलेट करो, 30,000 के करीब आता है भाई आज का रेट में, कैलकुलेशन के हिसाब, टैलेंट्स जो बोलते हैं राइट, सिर्फ 30,000 का। राजा ने तुझे 3 और यहां पे 30,000, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसे पकड़ लिया हाँ, और उसका गला दबा कर कहा, ये मत समझो वसूली करने वाले सिर्फ इस जमाने में है, वहां पे भी थे। सीधा सीधा नहीं पूछते, गला पकड़ के ही पूछते हैं, गला पकड़ के ही पूछते हैं। आगे, अपना कर्जा चुका दे। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा। एक मिनट 26th वर्स और ये 29th वर्स दोनों को एक बार पढ़ेंगे। ओके, पहला 26 पढ़ो। इस पर वो सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा। हाँ, और ये कहते हुए अनुनय करने लगा, आपको सब कर्ज चुका दूंगा। ओके, अभी 29। सहसेवक ने उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय करने लगा, धैर्य रखिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। वर्ड टू वर्ड it is exactly the same. Word to word exactly the same. जब ये पैरों पे गिरा, राजा के पैरों पे, राजा ने उस पर तरस खाया। और वही बात यहां पे रिपीट हो रही है कि कोई और इसके पैरों पे गिर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? हाँ, उसने नहीं माना, परंतु उसने नहीं माना। ओके, और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया, जब तक वो अपना कर्जा नहीं चुकाया, उसको बंदी गृह में डाला। हालेलुया, आमेन। इसने वही बातें की, राजा ने इसको माफ किया। कोई और इसके साथ वही चीजें की, लेकिन इसने माफ नहीं किया। उसको क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। राइट, ओके, आगे पढ़ना। ओके, रुको। हमको कई बार लगता है ना, जो हम करते हैं कोई नहीं देखता है, किसको दिखता नहीं। याद रखो, जो तुम करते हो ना, बोलने के लिए बहुत लोग हैं। अगर कोई इंसान नहीं बोलेगा ना, एंजल्स रखा है परमेश्वर ने। जो तुम छुप छुप के करते हो ना, वो बोलते परमेश्वर के पास मैसेंजर्स की कमी नहीं है। कभी ये मत समझना मैंने किया कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं, इमीडिएट जाता है वहां पे, तेरा न्यूज चला जाता है वहां पे। अब भी आया था चर्च में, माफी मांग के गया, घर को जाते ही एंजल बोला, कौन तो मेहमान आया दूसरे। शायद रास्ते में इसके साथ साथ आते हुए किसी और को पकड़ के लाया। चर्च में अलग ही था, ये आते आते कैसे बदल गया। जाते जाते हमारा चेहरा बदल जाता है। अगले संडे तक वही चेहरा, फिर संडे सवेरे उठते ही चेहरा बदल। लगता है एंजल्स भी परेशान होते, क्या लोग हैं। The whole world
अगर एंजल्स को पूछे ना तो बोलेंगे द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ एक्टर्स, सबको ग्रैमी अवार्ड देना। स्वर्ग में मिलेगा, जाएंगे तो मिलेगा। हालेलुया। तेरा कौन सा चेहरा याद रखूं, परमेश्वर पूछेगा। जो तू मेरे सामने गिर के गिड़गिड़ाया ना, जिससे देख के मुझे तेरे पे तरस आई, वो चेहरा याद रखूं, या फिर जो तू अपने सहकर्मी के साथ कर रहा है वो तेरा चेहरा याद रखूं? What face should I remember? एक चेहरा देखेगा तो तेरे पे तरस आ रहा है, लेकिन अगर मैंने तेरा दूसरा चेहरा देखा, आगे पढ़ो। हाँ, सब देखकर हाँ, उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी, और उन्होंने अपने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बताए। तब स्वामी ने उसके सेवक को बुलाकर कहा, हाँ, दुष्ट सेवक। क्या बोला? दुष्ट सेवक, जिस पर उसने तरस खाया। ध्यान से सुनो, जब आप आए यीशु मसीह के पास, आपकी हालत देख के तरस खाया उसने, तुम्हें उद्धार दिया। लेकिन उद्धार देने के बाद जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या वो देख के उसके मुंह से ये कभी ना निकले, कभी ना निकले। जिस पे तूने तरस खाया, अभी उसी को तू क्या बोल रहा है? दुष्ट सेवक। Once God has said, I am the Son of God. No. He knows our behavior and He can change the way He addresses us. यीशु मसीह, तेरे नाम पे हमने शैतानों को भगाया, तेरे नाम पे चंगाई किया, दूर हो जा। पहचानता नहीं मैं तुझे, ये चेहरे को कभी नहीं पहचानता मैं। मेरे नाम से जो किया नहीं वो बात अलग, लेकिन ये चेहरा मैंने देखा नहीं। वो जो आता था दीन बन के मेरे उपस्थिति में, नम्र बन के मेरे सामने गिर के जो दया की भीख मांगता, मैं उस चेहरे को पहचानता हूं। लेकिन बाद में जो बदल गया वो चेहरा नहीं पहचानता मैं। जिस पर तरस खा के मैंने माफ किया था, आज उसी को दुष्ट सेवक कह सकता हूं मैं। दुष्ट सेवक। तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज, यस, इस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुमने भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुझे दया दिखाना नहीं था? मैंने तेरे 10,000 सोने के सिक्के माफ किए, तू 100 चांदी के सिक्के माफ नहीं कर सका। जैसे मैंने तेरे साथ बर्ताव किया था, क्या तू भी उसी तरह बर्ताव करना नहीं चाहिए था? पिछली बार एक पैराबल बोला था मैंने। एक ने 2 कर्जदारों को बुलाया, एक 5,000, एक 10, कितना था नहीं, लेकिन दोनों को माफ कर दिया उसने। माफ करके यीशु मसीह वहां पे एक प्रश्न पूछता है, नाउ टेल मी हु विल लव मी मोर? If I am not reacting the way God reacted with me, अगर यीशु मसीह जैसे प्यार से मुझे माफ करके मुझे अपना बेटा बनाया,
अगर मैं वो प्यार दे नहीं सक रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने उसको, उसके प्यार को समझा ही नहीं है, मैंने उसके माफी को समझा ही नहीं। No, you have not understood the forgiveness of God. That is why you are unable to forgive. Let me be very frank with you. I know it's hard. पता है मुझे, जो दर्द देता है, जो दुख पहुंचाता है, उसको माफ करना बहुत कठिन है। लेकिन जो कर्जा तू चुका ही नहीं सकता था, परमेश्वर ने तुझे माफ किया, क्या उससे कठिन है तेरे लिए वो? इसका मतलब उसने जो माफ किया उसकी गहराई मैं समझ ही नहीं पाया। I have not understood the depth of his forgiveness. That is why I am unable to forgive. या फिर मैं ऐसे कहूं, क्या मेरे पाप सच में माफ किए गए? माफ नहीं किए गए, इसीलिए मैं माफी नहीं दे सक रहा हूं। I have not received it completely. मैंने उसके प्यार को, उसके माफी को संपूर्ण रीति से स्वीकार नहीं किया, इसीलिए किसी और को माफ करना मेरे लिए इतना कठिन काम है। Why does it become so hard to do as it was done for you? क्यों तकलीफ होती है हमें इतना? अरे जब कोई तुझे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई तुझे 10,000 दे रहा है, तुझे 100 रुपए देने में तकलीफ हो रही है। कोई तुझे इतना प्यार दे रहा है, तू एक स्माइल देने से तेरे को तकलीफ हो रही है। इसलिए बोला मैं, कभी कभी डाउट आता है, द पीपल हु कैन नॉट फॉरगिव, आर यू रियली सेव्ड? पुट अ क्वेश्चन मार्क, पुट अ क्वेश्चन मार्क। मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे मैथ्यू ने हमने पढ़ा 14 और 15 में, इफ यू डोंट फॉरगिव, योर फादर इन हेवन विल नॉट फॉरगिव। स्ट्रेट, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट गॉड इज टेलिंग। अगर तुम माफ नहीं किया तो तुम्हारे भी माफ नहीं हो गए। गलतफहमी में मत रहो कि मेरे पाप माफ हो गए, जब तक मैं ये खातिरी करूं कि मेरे दिल में किसी और के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने सबको माफ किया। जब तक ये मेरे दिल में खातिरी नहीं होती है, तब तक मैं बोल नहीं सकता हूं मेरे पाप माफ हो गए। हालेलुया। तब राजा ने क्या किया? वो जिसने माफ नहीं किया उसको क्या किया? तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या तुम भी उस प्रकार उससे पर दया करनी नहीं चाहिए? स्वामी ने क्रोधित होकर तब तक यंत्रणा के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? दंड देने वाले। इंग्लिश में एक वर्ड है, टॉर्चरर्स। हाँ, पीड़ा देने वाला, टॉर्चर करने वाले। किसके हाथ में दिया बोलते? टॉर्चर करने के वाले हाथ में दिया। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरी जिंदगी पूरी टॉर्चर से भरी है। तुझे दे दिया गया है, तुझे दे दिया गया, बिकॉज यू आर नॉट फॉरगिविंग। You are tortured in your mind, you are tortured in your work, you are tortured in your every area of your lives. Torturers are assigned for you. I am telling it very boldly. Why? Because you cannot forgive. क्योंकि तुमने माफ नहीं किया, परमेश्वर बोलता है I will give you into the hand of the torturers. पुराने नियम में परमेश्वर ने एक काम किया था, जब भी इस्राएली पाप करते ना तो उनको क्या बोलते, किसी और राज्य के हाथ में दे देते।
तो आज भी परमेश्वर बोलता है जब तुम माफ नहीं करोगे ना, आई विल गिव यू इनटू द हैंड ऑफ द टॉर्चरर्स। हालेलुया। Hallelujah. You are tortured on every side. You know why? Because you are not able to forgive. कुछ लोग बीमारी से टॉर्चर हो रहे, क्यों? अंदर भर के रखा है। Torturers are aside. Why? Because you did not forgive. You did not forgive. Okay, go back to Romans 13th chapter. Seven and 8 verse. I'll finish now. Yeah. हर एक का हक चुकाया करो। डरना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, आपस में प्रेम से जोड़ और किसी भी बात में किसी का भी कर्जदार मत बनो। राइट? जो read in TPT. Romans 13:7 and 8. Huh? Yes. Okay. Don't owe anything to anyone except for the outstanding debt, to continually love one another. Hallelujah. For the one who has learned to love has fulfilled all the requirements of the law. Hallelujah. Amen. एक बार किंग जेम्स वर्जन में पढ़ना उसको. I will go slowly. हाँ. Tribute to him who tribute is due. Custom to whom custom is due. Fear to whom fear is due. Honor to whom honor is due. Owe no man anything but to love one another. Yes, that's enough. Right? ये लिस्ट अगर मैं कहूं, ये सब हमारा कर्जा है। To respect one another एक कर्जा है मेरा। I cannot overlook somebody. I cannot dishonor somebody. I need to fear whom I am supposed to fear. नहीं, वो लोग ठीक नहीं है ना पास्टर, नहीं वो लोगों का नहीं, तेरी बात का। परमेश्वर तुझे पूछेगा। कंपैरिजन उनके साथ कंपेयर करके नहीं पूछेगा, तुझे अकेले पूछेगा। हालेलुया। पासपोर्ट ऑफिस गए थे हम लोग, पहले गेट के अंदर छोड़ते थे, अभी गेट के अंदर भी नहीं छोड़ते। बोला ओनली द एप्लीकेंट इज अलाउड। सो व्हेन यू स्टैंड बिफोर गॉड, एस्कॉर्ट कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ में कोई नहीं मिलेगा। I have forgiven you. Why did you not forgive? जैसे मैंने तुझे माफ किया, वैसे ही तुझे माफ करना चाहिए था।
I owe no man anything except to love. मेरा एक ही कर्जा होना चाहिए कि मैं किसी और से प्यार करता रहूं. 2 things I will tell you. मेरे विश्वासियों की तरफ मेरा कर्जा क्या है? उनसे प्यार करना, बाकी कुछ नहीं है. वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, my debt is to love them. और अविश्वासियों के साथ मेरा कर्जा क्या है? To preach them the gospel. Hallelujah. I have a debt to pay to the unbelievers, and that is the gospel. इसलिए पॉल कहता है, I woe unto me if I preach not the gospel. Hallelujah. Amen. So याद रखो इस बात को कि परमेश्वर कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो, हमारे कर्जे माफ कर जैसे हम किसी और को माफ करते हैं. He will deal with you exactly the way you are dealing with others. Hallelujah. Amen. Right? Very straightforward sentence. Unless I forgive, Lord, do not forgive me. हर बार जब तुम इस प्रार्थना को करोगे, इस बात को याद रखो, परमेश्वर जब तक मैं माफ नहीं करता, तू मुझे माफ मत कर. ये तुम प्रार्थना कर रहे हो. हर बार जब प्रभु की प्रार्थना बोलते हो, ये प्रार्थना कर रहे हो. तो 2 चीजें ऑप्शन आपके भी सामने आ जाती है, या तो माफ करके उसकी माफी पाओ, या फिर बिना माफ किए go into the hand of the torturers. Decision आपका है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. तो आज अगर मैं कहूं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक वेदी तैयार करें, एक अल्टर को बनाए, जहां हम अपनी माफी देंगे और परमेश्वर अपनी माफी हमें देगा. हालेलुया. क्योंकि जब तक मैं अपनी माफी नहीं दूंगा, वो अपनी माफी नहीं देगा. हालेलुया. सिंपल है. डोंट बी अंडर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आई एम फॉरगिवन. बहुत ही अलग बोल रहा हूं, बट डोंट बी अंडर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू आर फॉरगिवन. बहुत प्यार करता है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन वो कहता है जैसे मैंने तुझे माफ किया, जब तक तू उसका रेप्लिका नहीं बनेगा, तेरी माफी खातरी नहीं है. योर forgiveness is not guaranteed until you forgive somebody else. Hallelujah. खड़े हो जाएंगे.